Hello everyone, I welcome you all on this new session on first law of thermodynamic numericals. Here we are going to solve a lot of questions based on first law of thermodynamics and how the interaction of heat and work is taking place. So, uh, the outcome of this lecture is outcome of this session is first you will learn how to find how to decide a system, how to apply how to decide a system thermodynamic process, how to apply different equations of work done and heat, and third, thinking, imagination. These two aspects are very important in solving thermodynamics questions, right? And if you are using ChatGPT or any AI tool and where you are uploading your PDF to solve the thermodynamics questions, so it is going to deteriorate your thinking capability and it is going to deteriorate your imagination. So avoid these tools. Okay, so let's what is prerequisite for this session? Prerequisite for this session, first you should learn the previous session, that is lecture 1. From lecture 1 to 6 you have to go through all these lectures. Only when you will be able to understand, you will be able to uh, imagine these questions, right, and you will feel comfortable. Otherwise सर के ऊपर से चला जाएगा भाई. Then prerequisite for this session, second you should know the value of heat and work done in different thermodynamic process, in different thermodynamic processes, and you should know what are the main steps involved in solving thermodynamic questions. So I think we have learned 7 steps as mentioned in the class. 7 steps are very important, very essential for solving any thermodynamic questions. Okay, next. So let's try to revise that quickly. What are the different thermodynamic process, what are the equation for that, how their heat transfer, change in internal energy and work is calculated. Just a quick recapitulation. So just make a table here. So here we have TD process, TD process,
ideal gas equation, work, PV curve, slope, du, dq, specific heat, and here this is example. Okay, so let's try to draw. वेट, ये थोड़ा बड़ा चाहिए. So the process 1 is what? Isochoric process. So I am writing in short isochoric. ओके यार, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट, P2/P1 इक्वल्स टू व्हाट, T2/T1. एंड वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क ज़ीरो होगा. हाउ वी ड्रॉ इट ऑन PV कर्व. सो दिस इज़ P, दिस इज़ V, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट. ओके, अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा, व्हाट, क्या नाम रहेगा इसका, क्या नाम होगा, थिंक क्विक. इट विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. ऊपर से नीचे आएगा, क्या नाम रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. ओके, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दिस इज़ गोइंग फॉर लोअर आइसोथर्म टू हायर आइसोथर्म, and this is coming from higher isotherm to lower isotherm. स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, यहाँ पे dp/dv ये कितनी हो जाएगी यार, ये इनफाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे. तो dp/dv कैसे निकाला अपन ने, जस्ट राइट tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल से, इट इज़ 90. tan 90 की वैल्यू यू विल गेट इनफाइनाइट. एंड dv की वैल्यू वी ऑलरेडी नो फॉर एनी आइडियल गैस, dv वैल्यू इज़ mcv dt. एंड dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, dq की वैल्यू भी mcv dt आती है. और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, c की वैल्यू इट विल बी हाउ मच, cv, इट विल बी cv, और वी कैन राइट इट r bar अपॉन गामा, r bar अपॉन m इंटू गामा -1. इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल इसका कैसे रहेगा. यस, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या बना है यार, एक स्टॉपर बना हुआ है, राइट. सो वॉल्यूम इज़ गोइंग टू कांस्टेंट हियर, ये कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, और हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है, कुछ वर्क डन यहाँ से हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ आइसोकोरिक प्रोसेस लुक्स लाइक. सो दिस इज़ वन. इसको स्टॉप करते हैं. Okay, so next process is यार, तो स्पेस कम है इसमें. नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हाट वी कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस. अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वी विल यूज़ PV इक्वल्स टू MRT. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम देयर, V2/V1
इक्वल्स टू हाउ मच T2/T1। ओके, आइसोबेरिक में वर्डन कितना हो जाएगा यार, प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम विल वेरी, वर्क विल बी व्हाट PdV, सो वी कैन राइट इट P V2 माइनस V1। ओके, और यहाँ पे अगर देखें दिस इज़ P, दिस इज़ V, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, आइसोबेरिक एक्सपेंशन। आइसोबेरिक एक्सपेंशन क्यों, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग हियर। अच्छा, अगर मैं राइट से लेफ़्ट आऊँगा, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर, pressure is constant but volume is decreasing, so isobaric compression और isobaric heat rejection, इसमें क्या होगा, isobaric expansion और isobaric heat addition। ओके, एंड dp/dv यहाँ पे निकालेंगे, क्या आएगा, dp/dv इट विल बी हाउ मच, tan 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एंड व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी, mCv dt, and what is the heat here, we already calculated mCp dt, and what is the value of C, it will be how much, Cp, so it will be what, gamma times Cv, it will be gamma times Cv, so we can write gamma upon m, gamma minus 1। अच्छा, ये प्रोसेस दिखेगा कैसे यार, सो वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये सिलेंडर है, दिस इज़ द पिस्टन, एंड यहाँ से हीट आएगी और सिलेंडर का मोशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा। ओके, सो हियर पिस्टन is forced to move, piston is forced to move at constant pressure, प्रेशर पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा, उसी प्रोसेस से ये ऊपर बढ़ता जाएगा। सो लेट्स कंप्लीट दिस टेबल। Okay, so let's come to next is what, temperature is constant, so which process it will be, this will be isothermal, यार isothermal, this will be isothermal में what we can write यार, P1V1 equals to P1V1 equals to P2V2, है ना। और वर्डन का फॉर्मूला यहाँ पे कितना आता है यार, इट कम्स ln it comes P1V1 ln P1/P2 और P1V1 ln V2/V1। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस दिखता कैसे है, इट इज़ PV, और यहाँ से फ्रॉम 1 to 2 ये आएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो क्या नाम रहेगा, दिस प्रोसेस विल बी व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेशन, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑन PV कर्व। ओके, एंड नॉट टेक इट्स dp/dv फॉर दिस, ये कितना आएगा, लेट्स ट्राई टू कम हियर। So in case of isothermal process we have PV equals to constant, I want value of dp/dv, कैसे निकालेंगे इसको, जस्ट टेक ln फॉर्म, नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड, वी विल गेट व्हाट, PdV प्लस VdP इक्वल्स टू 0, है ना।
तो अपन कितना हो जाएगा वी डी पी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, और यहाँ से वी विल गेट डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप. अच्छा, सिमिलर केस आता है for adiabatic process where equation is p v की power gamma equals to constant. So if I want to calculate dp by dv for this process, what we have to do, so just differentiate both side. What we will get, we get p constant, then differentiate v की power gamma into v की power gamma minus 1 into dv plus v की पावर गामा into what dp equals to 0. ठीक है, तो just write it. v की पावर गामा dp equals to minus p into gamma into v की पावर गामा माइनस 1 into dv. तो यहाँ से dp by dv करिए, so what we are getting minus p into gamma into this upon v की पावर गामा माइनस 1 into v की पावर गामा. ठीक है. अच्छा, यहाँ से क्या होगा यार, ये गामा से ये गामा कट जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट p बाई v माइनस इंटू गामा. सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dp बाई dv it become minus gamma times pv. Okay, so here can we write dp by dv for adiabate is equals to gamma times dp by dv at constant temperature. So this is the relation between the slope for two curves. So इसकी वैल्यू यार यहाँ पे ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई. So we will need this values in that table. Okay, dp by dv कितना हो जाएगा यहाँ से. So it will be how much, minus p by v देन du की वैल्यू कितनी होगी यार, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, सो du की वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड dq की वैल्यू कितनी होगी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0. सो dq विल बी इक्वल्स टू व्हाट, w, del q equals to what, del w. This is your del q, this is del q. I just mistakenly written here dq, this is del q. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, p1 v1 ln p1 by p2. ठीक है, the same value which we have written here. So it will be same value. and c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, in case of here, so c value will become how much, c value becomes infinite. We have already done this calculation in the class. Okay, and what is the example for this process? So we have a cylinder piston arrangement, and here we have kept a small weight on the top. और हम क्या करेंगे यार, धीरे धीरे इस वेट को हटाएंगे. So the piston will move slowly to the upside or downside. So this isothermal process is very slow process.
this is very slow process. Now let's complete this. Now let's take uh, for adiabatic process. In case of adiabatic process, what we have, this is constant, so it will be adiabatic process. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा. ओके, एंड वर्क डन कितना हो जाता है यार यहाँ पे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1. और व्हाट वी गेट हियर जब भी कभी एडियाबेटिक कर्व बनाना है आपको, फर्स्ट ड्रॉ आइसोथर्मल लाइन, राइट, this is P, this is V, and one adiabate travels between two isotherm, right? So this is adiabatic curve. और यहाँ से हम अगर लिखेंगे dP by dV, it will be how much, माइनस गामा टाइम्स P by V, एंड du की वैल्यू कितनी होगी यार यहाँ पे, mCV dt, एंड dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, दिस इज 0, and specific heat is also 0. And how this process looks like, so it is like just यार मैं सिलेंडर को this I am keeping it in horizontal manner. So this is cylinder, this is piston. ओके, और यहाँ पे क्या है, एक स्टॉपर यहाँ पे लगा है और एक स्टॉपर यहाँ पे लगा हुआ है. तो जैसे ही मैं स्टॉपर लगाऊंगा ये फट से यहाँ पे आएगा. सो दिस प्रोसेस इज़ फास्ट प्रोसेस. So this is about adiabatic process. So now let's complete this. So this is for adiabatic process. This is adiabate. This is isotherm. This is constant pressure. This is isochoric. So fifth is polytropic process. So here we have this PV की power n constant. So this is our polytropic process, and in case of polytropic process we get P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू व्हाट, P2 V2 की पावर n. और वर्क डन का फार्मूला सेम रहता है यार यहाँ पे, n-1. ठीक है, और n की वैल्यू लाई करती है गामा और 1 के बीच में. ठीक है, तो जो ये वाला कर्व होगा, ये वाला पॉलीट्रॉपिक वाला, दिस विल बी इन बिटवीन isothermal and adiabatic curve. तो just focus it here, this is isothermal curve, okay, and this is adiabatic जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है. okay, so this is isotherm, this is P, this is V, this is isotherm, this is adiabate. और पॉलीट्रॉपिक कैसे रहेगा यार, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसके बीच में आएगा, बिकॉज इट्स n वैल्यू इज इन बिटवीन गामा एंड 1. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ओके, एंड स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dP by dV सेम n इंटू P by V. ओके, एंड u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार यहाँ पे,
u की वैल्यू du, it will be dt. So here change in internal energy will be mcv dt and dq की वैल्यू कितनी होगी? So this will be gamma minus n upon gamma minus 1 into what? w की वैल्यू अपन यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं. सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन. n माइनस गामा, c की वैल्यू n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 टाइम्स सी वी. ओके, सो यार ये ध्यान रखना, हीट में इन केस ऑफ हीट एम्फेसिस अपन गामा को देंगे एंड इन केस ऑफ हीट कैपेसिटी एम्फेसिस अपन एन को देंगे. ठीक है, तो कैसे इसको ध्यान रखना है? अगर गामा को एम्फेसिस दिए तो ऊपर क्या करेंगे? गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1. ओके, और यहाँ पे एम्फेसिस अगर एन को देंगे हीट कैपेसिटी वाले में, सो हाउ वी विल राइट एन माइनस गामा अपॉन एन माइनस 1. ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि सी हीट कैपेसिटी में दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव. ओके, तो ये ध्यान रहेगा. सी एन जस्ट कार्टून नेटवर्क, सी एन फॉर कार्टून नेटवर्क, जस्ट ये ध्यान रखिए, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि क्यू इज़ व्हाट? गामा. ठीक, सी एन स्टैंड फॉर कार्टून नेटवर्क. सो दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे दिखेगा एग्जाम्पल में? सो इट लाइज बिटवीन आइसोथर्मल एंड दिस इज बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेट. Okay, so this is all this chart is very important for solving first law of thermodynamic questions. Okay, so now let's move ahead. Okay, ये हो गया है. Now let's try to solve question number 1. So here I think अब इसको अपन 15 पे कर लेते हैं. Let's see on 12. Okay, now let's try to understand question number 1. A 0.1 meter cube of air as 0.1 meter cube of air, यह वैल्यू क्या दी हुई है? जस्ट राइट इट. V1 इज 0.1 मीटर क्यूब ऑफ एयर और गैस यहाँ पे इट इज़ व्हाट? एयर एट ए प्रेशर ऑफ 1.5 बार. P1 इज 1.5 bar is expanded isothermally, right? Isothermally means PV equals to constant 2. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर क्यूब. कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर of the gas and heat supplied during the process. Okay, so this is the main question. So let's try to draw this process on PV curve. अच्छा, यहाँ पे अगर सिस्टम में लूँगा, सो सिस्टम इज़ हाउ एयर, इतना ये एयर है और यहाँ पे एयर का एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली, राइट? सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस कर्व ऑन PV डायग्राम. So this is our V1. एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है तो V1 से V2 में जाएगा. ओके, और यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा तो यार प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो हियर इट विल समवन P1 एंड हियर इट विल बी व्हाट? P2. So draw this diagram very nicely in your copy during your exam.
ओके, सो कैसे ड्रॉ करेंगे यार? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, सो कर्व विल लुक लाइक दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2। ठीक है, तो मुझे क्या क्या निकालना है? P2 निकालना है, P2 निकालना है। कैसे यार निकालेंगे? सो हाउ वी विल कैलकुलेट P2? मुझे P1 पता है, V1 पता है, एंड हियर V2 भी पता है। सो आई थिंक वी कैन राइट, in case of isothermal process, we can write P1 V1 equals to P2 V2, right? Just do the calculation, put all the values here, you will get P2 value 0.3 bar. Okay, and what next? The heat. So here this is which process? This is isothermal process. So in case of isothermal process, the delta T is 0. So can we write that change in internal energy is 0? Then what we can write, del Q equals to del W, और del W की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार इन आइसोथर्मल? Just please look the table which we have discussed earlier. So it will be how much? P1 V1 into ln P1 by P2. Okay, so it will be how much? So let's do this calculation. P1, so just put all the values. P1 is how much? 1.5. अच्छा, please make sure that 1 bar equals to 100 kilopascal, and take volume in meter cube. Take volume in meter cube. So what we will get by multiplying this, we will get work unit in kilojoule. ठीक है, तो it will be what? 1.5 into 100, keep it in kilopascal. ओके, एंड V1 की वैल्यू कितनी है? 0.1 ln P1 की वैल्यू 1.5 अपॉन P2 की वैल्यू 0.3. जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, एंड सो फ्रॉम हियर वी विल गेट आंसर इज 24.11 kilojoule. So unit is very very important here guys, please check this unit. Okay, so this is question number 1. So now let's try to understand question number 2. Question number 2, a gas having initial pressure, volume and temperature itna. So just write all the values which it is given. Having initial pressure is P1. जो भी पहला प्रेशर आएगा क्या लिखेंगे उसको? P1 इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, सो इट विल बी व्हाट? V1. इनिशियल टेम्परेचर इज T1, राइट? प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 0.09 मीटर क्यूब, एंड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है यार? 185 डिग्री सेल्सियस। सो is compressed at constant pressure until its temperature is, constant pressure है तो just think of this process on PV curve. तो ये क्या हो गया? constant pressure है ना? इस कंप्रेशन लिख रहा है, तो मैं क्या स्टेट 1 यहाँ पे लूँ और स्टेट 2 यहाँ पे लूँ, और मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? सो आई थिंक ये करना गलत है क्या? हमें कैसा दिखाना चाहिए? 1 इधर लूँ, 2 इधर लूँ, ऐसा दिखा सकता हूँ क्या? यस, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये इस तरफ आएगा, एंड हियर it will be what? V1, this will be V2. Constant pressure until its temperature is 15 degree Celsius. So T2 is 15 degree Celsius. Calculate the amount of heat transfer.
So we have to calculate Q12 heat transfer and work done during the process, and work done 1 से 2 ये कितना है, टेक आर की वैल्यू कितना बोल रहा है यार, दिस इज़ वॉट 0.2929 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड Cp की वैल्यू इट इज़ 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, so here we should understand first pressure unit in kilonewton per meter square, है ना। तो इसलिए होता क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1 पास्कल, दिस इज कॉल्ड 1 पास्कल, करेक्ट। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है यार, दिस इज़ इन kPa, दिस इज़ इन kPa, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सो इट विल बी इन kPa, राइट। नाउ if we see in case of constant pressure process, what is the value of heat transfer, this value comes out mcp dt, है ना। सो हमें क्या Cp की वैल्यू पता है क्या, यस Cp हमें दिया हुआ है, एंड डेल्टा टी पता है क्या, यस T1 T2 हमें पता है, और डेल्टा टी इज विल बी वॉट, डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहे अगर मैं इसको सेल्सियस में लूँगा दोनों को तब भी डिफरेंस सेम आएगा, अगर मैं इसको केल्विन में लूँगा तब भी यार डेल्टा टी की वैल्यू सेम आएगी, राइट। जहाँ पे एलन में लेना होता है वहाँ पे हम उसको केल्विन में लेते हैं, मान लो एलन T2/T1 करना होता, राइट। सो हियर वी हैव टू टेक इन केल्विन, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं 273 दोनों में ऐड कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो डेल्टा टी विल सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा यार यहाँ पे, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सो अगर यहाँ पे हम चाहे केल्विन में कन्वर्ट करें या केल्विन में ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। Cp दिया है, dt दिया। अच्छा, मुझे m की वैल्यू पता है क्या, गैस की वैल्यू पता है क्या, लेट्स चेक। गैस की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, सो हाउ वी कैन फाइंड मास ऑफ द गैस, सो डू वी हैव एनी रिलेशन विच कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस, लेट्स थिंक। yes, we have a relation P1 V1 equals to what, m r T1, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे P1 की वैल्यू P1 वैल्यू दिस, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट P1 की वैल्यू रखिए 275, ये हो जाएगा किस में, किलो पास्कल। सो m की वैल्यू कितनी आएगी यार यहाँ पे, P1 V1 अपॉन R/T1, तो P1 की वैल्यू कितनी है 275 इंटू दिस इज़ व्हाट किलो पास्कल, और V1 की वैल्यू कितनी है 0.09 किलो पास्कल, ये और मीटर क्यूब में ये ओके है ना। तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, किलो जूल में आएगी, एंड चेक द यूनिट ऑफ R इट विल बी 0.29, ये किलो जूल पर केजी मैंने ले रखा है, राइट। एंड T1 की वैल्यू कितनी है, हियर वी हैव टू पुट इन केल्विन, 185 प्लस 273, जस्ट कैलकुलेट द m वैल्यू फ्रॉम हियर। यार यहाँ पे ना यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने आई हैव टेकन दिस एज ए 0.29 इन किलो जूल, है ना। अगर 290 आप यहाँ पे रखोगे आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर की यूनिट मैं किस में ले रहा हूँ, किलो पास्कल और मीटर क्यूब में, सो इट विल रिजल्ट इन किलो जूल, दैट्स वाई मैंने नीचे R की वैल्यू भी किलो जूल में ली है। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट m वैल्यू एज 0.186 kg, m वैल्यू विल बी 0.186। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं,
0.186 गुणे CP 1.005 गुणे डेल्टा टी कितना है यार यहाँ पे, डेल्टा टी इज़ हाउ मच, just do this calculation, 185 minus 15. So from here just do this calculation, we will get the value of sorry guys, see we will write t2 minus t1 है ना, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, t1 से t2, so this will be what, t2 minus t1, this will be 15 minus 185, okay, this will be how much, this will be minus 31.78 kilojoule, ओके अच्छा, वाई दिस नेगेटिव साइन का जस्ट मतलब इतना ही है कि हीट इज़ कमिंग इन द सिस्टम, हीट इज़ कमिंग इन द सिस्टम, थिंक नो, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, देन हीट विल गो आउट फ्रॉम द सिस्टम, सो ये क्लियर है, सो दिस इज़, now we have to calculate what work done in the process. So this is constant pressure process, so in 1 से 2 work done will be what, P इंटीग्रल dV, तो क्या हो जाता है यार, V2 माइनस V1, ठीक है। अच्छा हमें V1 की वैल्यू पता है यहाँ से, we know the V1 वैल्यू, ओके, क्या हमें V2 की वैल्यू पता है क्या, V2 की वैल्यू पता है क्या, लेट्स चेक, V2 की वैल्यू पता है क्या, V2 की वैल्यू नहीं पता है आई थिंक यहाँ पे, ओके, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द V2 वैल्यू, तो V2 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर दिस प्रेशर इज़ कांस्टेंट, तो सो कैन आई राइट, आई हैव मेंशन इन द टेबल आल्सो, प्रेशर इज़ कांस्टेंट, सो कैन आई राइट दैट V1 by V2 is equals to T1 by T2, then volume will directly proportional to T, so I think T1 T2 अपन को दिया है, take T1 T2 value in Kelvin, V1 value in meter cube, and from here we will get V2 value we will get 0.056 meter cube, and here the work done will be how much, इट विल बी 275, इसकी यूनिट किस में रहेगी, किलो पास्कल, V2 इज़ 0.056 माइनस 0.09, सो दिस इज़ इन मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम यूनिट इज़ मीटर क्यूब, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यार कितना आएगा, सो वी विल गेट 9.35 kilojoule, so this will be W12 is what, 9.35, ओके। अच्छा यहाँ पे वर्क निगेटिव है, इट मीन्स कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से, okay, so I think this is question number 2, let's move, now let's see question number 3, okay, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ओके, जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको सीक्वेंशली हम लोग अपने यहाँ पे लिखेंगे, राइट, और जो भी सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, दिमाग में रखेंगे, वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम हियर, ओके, एंड उसको पीवी कर्व पे अपन को प्लॉट करना है, राइट, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई which equation is will be going to use there, and just check the value of units for pressure, volume and R, ठीक है, okay, let's try to understand. A stationary mass of gas is compressed without friction, means frictionless
जैसे ही फ्रिक्शन लेस आया, थिंक अबाउट फ्रिक्शन लेस प्लस क्वासी स्टैटिक दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब टू इतना। ओके, स्टेशनरी मास ऑफ गैस, तो जस्ट वैल्यूज लिखते जाइए यहाँ पे। compressed without the friction from initial state of what V1. So V1 is 0.3 meter cube and P1 is 0.105 megapascal to a final state. V2 is 0.15 meter cube and P2 is 0.105 मेगापास्कल। ओके, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो क्या P1 P2 और कांस्टेंट लग रहे हैं क्या? These values are constant. The pressure remaining constant during the process. ओके, जैसे ही ये बोला, just we have to draw the PV curve. Okay, let's try to draw the PV curve. अच्छा, वॉल्यूम की वैल्यू देखो क्या हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, 0.3 से 0.15 हो रहा है। तो किधर आना चाहिए, इधर से इधर आऊँ या इधर से इधर जाऊँ? सोचो, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, सो आई शुड कम फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, this is V1, this is V2. Okay, there is a transfer of 37.6 kg of heat from the gas during this process, means कि गैस यहाँ से यहाँ निकल रही है, so heat reject हो रही है। 1 to 2 will be what? Heat rejecting from the system. How much does the internal energy change of how much does the internal energy of the gas change? Okay, so there is some heat coming out from this compression 1 से 2, then it is asking what is du 1 से 2. okay, so just du कैलकुलेट करना है यार। अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, du विच कनेक्ट्स du एंड q। अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है du इक्वल्स टू del q माइनस del w, है ना। सो अपने को क्या dq की वैल्यू पता है क्या? dq की वैल्यू पता है क्या? ओके, जस्ट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र, ओके देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इतना हीट। तो हीट की वैल्यू कितनी है यार यहाँ पे? दिस इज़ -376 किलो जूल, है ना। हीट की वैल्यू निगेटिव में दे रखी है एंड ओके, सो हीट की वैल्यू निगेटिव में है तो वी कैन टेक हीट की वैल्यू दे रखी है। ओके, और डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? एरिया अंडर द कर्व। जो सिंपल है, डेल क्यू कितना है? -37.6 एंड माइनस डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया अंडर द कर्व, इट विल बी व्हाट? P V2 minus V1. So from here we will get 37.6 माइनस प्रेशर की वैल्यू कितनी है? प्रेशर इन दिस इज़ इन मेगा पास्कल, है ना। तो 1 मेगा पास्कल, यहाँ पे ध्यान रखिए यार, 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10⁶ पास्कल, है ना। हमें किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है इसको। सो ये क्या हो जाएगा? 10⁻1000 किलो पास्कल, है ना। सो इट विल बी 1000 किलो पास्कल। सो 1000 V2 की वैल्यू कितनी है? 0.15 एंड 0.3। जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, वी विल गेट du की वैल्यू -21.85 kilojoule. So this will be what? Change in internal energy during this process. ओके, अच्छा यहाँ पे देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। दिस वैल्यू इज़ निगेटिव, व्हाट डज इट मीन्स? सो इट मीन्स
दैट टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ से चेक करते हैं टेम्परेचर कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं 2 पे एक आइसोथर्म ड्रॉ करूँगा ये ऐसे आएगा, और 1 पे एक आइसोथर्म ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे आएगा। और वी हैव ऑलरेडी लर्न कि अगर ये मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इट्स टेम्परेचर इज़ T1, इस टेम्परेचर इज़ T2। और इस कर्व पे अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ क्या होता है, T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, राइट। तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दो का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रही है। दैट्स वाई, दिस इज़ वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ नेगेटिव।